Good morning, students. In the last class, we have read the chapter The Ashes That Made Trees Bloom, and we have completed that particular chapter in our last class. So today I am sharing you the exercises, that is question answers of this particular chapter. Picture may look a little hazy, but I hope that you will definitely getting the answers. They are visible. So I am reading those answers also for your convenience. In case if you not understand the thing written, then after hearing my voice you may understand. You will definitely understand after hearing the voice. So let's start the exercise. The question which you can see as number 1 is, the old farmer is a kind person. What evidence of his kindness do you find in the first two paragraphs? तो स्टूडेंट्स आंसर लिख सकते हो आप. The old farmer had a little dog. He loved the dog like his own child. He fed the pet dog with his own chopsticks. The old man was patient and kind to all living creatures. He often turned up a sod, S-O-D, sod, on purpose to give food to the white heron and other birds. ये लिख सकते हो आप. Question 2 है, what did the dog do to lead the farmer to the hidden gold? तो आंसर लिख सकते हो आप. The dog came running to the farmer. The dog put his paws against farmer's leg and urged the farmer to follow him to a spot near the pine tree. He kept on running here and there with excited yelps and started scratching the earth. The farmer dug the place with his hoe, thinking that there might be a buried bone or fish. But he found a pile of gold while digging the ground. So this is the answer of your question 2. Now let's see the answer of 3 and 4 also. The third question is, how did the spirit of the dog help the farmer first? There are actually two questions. तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये है कि first the dog spirit told the farmer to cut down the pine tree and make a mortar and mill out of it. He told him to pound boiled rice and grind bean in these things. When the farmer did so, many gold coins dropped like rain. ठीक है. Fourth question is, why did the daimyo reward the farmer but punish his wicked neighbor for the same act? इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखोगे. The daimyo rewarded the farmer since he sprinkled ash on an old and dried cherry tree to make it bloom, and in a moment it burst into blossoms. This pleased the daimyo very much. On the contrary, the same ash, when sprinkled by the cruel and wicked neighbor, did not work its magic, and the ashes scattered by him blew into the noses and eyes of the daimyo and his wife. This made the daimyo furious, and his tall, competent man beat the wicked old man to death. So these are the 4 question answers which I have shared of that chapter, which was actually the chapter number 4 of your textbook. So students, out of the given 10 chapters, we have already completed chapter 4 up till 8th of September, that's today. So now
we are moving forward, but I have thought, अब आप जो स्क्रीन देख रहे हो, इस स्क्रीन में मैं अभी फ़िलहाल कोई भी एक्सरसाइज और आज के वीडियो में शेयर नहीं कर रहा हूँ. एक्सरसाइज इतनी ही शेयर कर रहा हूँ, 1 2 3 4 क्वेश्चन आंसर्स. There are a lot of things written because I just want to clear you that I have the advisor book, and I use the advisor book just to make you understand, just to share the question answers with you or a few exercises with you. वैसे अगर मैं चाहूँ तो एडवाइज़र के सारे क्वेश्चंस ही आपके साथ शेयर कर लूँ, वर्किंग विद लैंग्वेज के सारे, राइटिंग के सारे, बट डैट विल बी एन अटर वेस्ट. वो बेकार की चीज़ होगी. सारे क्वेश्चंस अगर मैं एडवाइज़र से ही आपसे शेयर कर लूँ तो इट विल बी नॉट एट ऑल यूजफुल टू यू. यू हैव टू डू समथिंग बाय योर सेल्फ. वी हैव टू डू समथिंग बाय आवर सेल्व्स इन द क्लास. सो इस चैप्टर के, इस 4th चैप्टर के ये 4 क्वेश्चंस के अलावा मैं और कोई आंसर आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ. देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन वर्किंग विथ लैंग्वेज. 1 नंबर एक क्वेश्चन है, फिर उसके बाद 2 3 4 5 5 प्रकार के अलग अलग क्वेश्चंस हैं. 6 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं वर्किंग विथ लैंग्वेज में. और फिर स्पीकिंग एंड राइटिंग में भी 3 प्रकार के क्वेश्चंस हैं. तो स्टूडेंट्स, वर्किंग विथ लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस हैं वो अभी मैं नहीं डील कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़ी सी प्रैक्टिकली अगर हो तो ज़्यादा अच्छा हो. तो अभी एक बार के लिए मैं ये छोड़ रहा हूँ. मे बी बाद की किसी क्लास में मैं शायद आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन फ़िलहाल वर्किंग विथ लैंग्वेज के क्वेश्चंस मैं आपके साथ डील नहीं कर रहा हूँ. आप अपनी टेक्स्ट बुक में स्पीकिंग एंड राइटिंग पोर्शन निकाल सकते हो. और स्पीकिंग एंड राइटिंग पोर्शन का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि डू यू रिमेंबर एन एनेक्डोट और ए स्टोरी अबाउट ए ग्रीडी और जेलस पर्सन एंड द अनहैप्पी रिजल्ट ऑफ his or her action. Narrate the story to others in your class. Here is one for you to read. तो एक कहानी दी हुई है और एक और कहानी आपको लिखने बोली गई है. तो दिस इज योर होमवर्क. ये आप खुद से ट्राई करोगे. एंड रिमेंबर, whenever I will give you homework, don't copy it from advisor if you have it. आपके पास अगर एडवाइज़र बुक है और मैंने कोई चीज़ होमवर्क दी है तो आपको उससे कॉपी नहीं करना, क्योंकि कॉपी अगर करना हो तो फिर मैं ही आपको इसमें से लिखा सकता हूँ, मैं ही पिक्चर क्लिक करके आपको शो कर सकता हूँ. ठीक है, देयर इज़ नो नीड. भाई एडवाइज़र से मैं कुछ आंसर्स शेयर करता हूँ, कुछ आंसर्स मैं और कहीं से भी शेयर करता हूँ आपके साथ. ज़रूरी नहीं कि मैं सारे आंसर्स आपके साथ एडवाइज़र से ही शेयर करता हूँ. किसी दूसरी बुक से या किसी दूसरे ऐप से भी मैं शेयर कर सकता हूँ, खुद से भी लिखा सकता हूँ. आपको फ़िलहाल जो होमवर्क मिलता है, अगर आपके पास एडवाइज़र बुक है तो आपको उससे नहीं करना है, आपको खुद से करना है. सो दिस इज़ राइटिंग पोर्शन. आई मीन 1 नंबर इज़ योर होमवर्क. यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ इन योर नोटबुक. करना क्या है, देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अभी भी हमने पढ़ा कि कोई भी कहानी आपको क्या ऐसी याद है जिसमें कोई लालची या दूसरे से जलने वाले व्यक्ति का दुखद अंत हुआ हो. एक स्टोरी आपकी बुक में दी सॉरी एक स्टोरी आपकी बुक में दी हुई है जो आपको पढ़ना है, और उसके बाद आपको कोई दूसरी स्टोरी लिखनी है. क्वेश्चन 2 है, पुट ईच ऑफ द फॉलोइंग in the correct order, then use them appropriately to fill in the blanks in the paragraph that follows. Use correct punctuation marks. इसको भी अभी नहीं करना है, छोड़ दो. 3rd नंबर फिर से आपका होमवर्क है. Are you fond of reading stories? Did you read one last month? If not, read 1 or 2 and then write a paragraph about the story. Use the following hints: title of the story, name of author, how many characters, which one you liked, some details of the story, main points as you understand it. तो इस प्रकार से आपको इन पॉइंट्स को बेस्ड करके एक स्टोरी लिखनी है. और
टेल योर फ्रेंड्स व्हाई दे शुड ऑल्सो रीड इट। तो आपको कोई एक ऐसी कहानी लिखनी है जो आपने पिछले महीने या कुछ दिनों पहले पढ़ी है, और अगर नहीं पढ़ी है तो कोई स्टोरी पढ़ो अदर देन योर टेक्स्ट बुक। ऑब्वियसली अदर देन योर टेक्स्ट बुक स्टोरीज आपको कोई स्टोरी पढ़नी है और उसके बारे में लिखना है। वैसे तो आपके एडवाइज़र में मंत्रा बोल के कहानी के बारे में लिखा हुआ है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, आपको ये नहीं लिखना है। राइट योर ओन स्टोरी। सो स्टूडेंट्स, नंबर 1 ऑफ राइटिंग एंड नंबर 3 ऑफ राइटिंग इज rather are your homeworks. Now we are moving forward to read the next chapter which is the poem. Students, कुछ portions छूट रहे हैं मुझे पता है, because every portion को अगर मैं वीडियो के द्वारा शो करता हूँ तो it is not justified and it will not be useful for you. ठीक है, तो जो चीज़ें मुझे आपसे शेयर करना ज़रूरी है या एटलीस्ट जो चीज़ें आपको नोटबुक में उतारनी ज़रूरी है वो सारी चीज़ें मैं शेयर कर ले रहा हूँ, और कुछ चीज़ें जो बुक में हो सकती है या कुछ चीज़ें जो ओरली हो सकती है, ठीक है, उनको हम लोग सही समय आने पर करेंगे। अभी हम लोग चीवी पोयम पढ़ने वाले हैं। चीवी पोयम आप देख पा रहे हो, आप अपनी स्क्रीन में आप जो चीवी पोयम देख रहे हो इसको हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। देखते हैं क्या लिखा है। आस्क योर सेल्फ, अच्छा, दिस इज ए पोएम रिटन बाय माइकल रोजेन। आस्क योर सेल्फ एज वेल एज योर पार्टनर, डू यू लाइक टू बी ऑलवेज टोल्ड व्हाट टू डू और नॉट टू डू? Do grown-ups do this in your experience? When Michael was 5 years old, his mother took him to a nearby school for admission. The teacher asked, "What does your mother call you at home, child?" "Michael, don't," came the confident reply. Note, the chivi is to nag, to continuously urge someone to do something, often in an annoying way, according to the dictionary. To chivi, nag. Read the poem now. तो स्टूडेंट्स, ये जो हम अभी पढ़ने वाले हैं पोएम चिवी, तो इसका अगर आप वर्ड मीनिंग डिक्शनरी से निकालोगे तो उसका मतलब ये होगा कि किसी भी व्यक्ति को लगातार कोई काम करने को बोलना, लगातार कोई काम को करने को बार बार अगर हम लोग किसी व्यक्ति को बोलते हैं एक ही काम को, अलग अलग तरीके से हम सामने वाले को समझाते हैं करो करो करो, तो इरिटेटिंग वे में, एनोइंग वे, परेशान करने वाले अंदाज में अगर हम लोग सामने वाले को कुछ समझाते हैं, कुछ करने के लिए बोलते हैं, तो वो चीवी कहलाता है। ठीक है, आप अपने आप को पूछो, अपने दोस्त को पूछो, क्या आपको ये पसंद होगा कि आपको कोई ये समझाए कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है? क्या बड़े लोग आपके अनुभव में सो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या ये पसंद करेंगे कि कोई हमें बार बार एक ही काम को करने के लिए बोले? और क्या बड़े लोग ऐसा करते हैं आपके हिसाब से? शायद नहीं, या शायद ना के बराबर। माइकल रोजेन के द्वारा लिखी गई पोएम है। तो माइकल जब छोटे थे, 5 साल के थे, तब उनकी मम्मी ने उन्हें एक पास के स्कूल में एडमिशन के लिए जब उनकी मम्मी ले गई, तो टीचर ने उनको पहला सवाल पूछा कि आपको घर में किस नाम से बुलाया जाता है? तो संग संग उन्होंने जवाब दिया, माइकल डोंट, माइकल ये काम मत करो। ये एक अजीब सी बात उसने कही, माइकल डोंट, मतलब माइकल का नाम माइकल डोंट है, समझ रहे हो? जैसे मान लो कि किसी का नाम है अर्पित, सपोज किसी बच्चे का नाम है अर्पित, तो स्टूडेंट्स, अगर किसी बच्चे का नाम अर्पित है तो उसको अगर उसको पूछा जाए कि तुम्हें घर में किस नाम से पुकारा जाता है, और वो ये जवाब दे कि अर्पित नहीं, अर्पित नहीं,
मतलब अर्पित ये काम नहीं करना है, ये उस बच्चे को याद ही हो गया है। चिवी का मतलब हम पहले ही बोल चुके हैं। चिवी का मतलब किसी को एक काम को करने के लिए बार बार मना करना, अजीबोगरीब तरीके से परेशान करने वाले तरीके से, उसको कहा जाता है चिवी, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। अब इस पोएम को पढ़ते हैं हम लोग। ग्रोन अप्स से थिंग्स लाइक स्पीक अप, डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, डोंट स्टेयर, डोंट पॉइंट, डोंट पिक योर नोज। बड़े लोग अक्सर बोलते हैं इस तरह की बातें कि बच्चे बोलो, चुप मत रहो, अपने मुंह में खाना भर के बात नहीं करनी चाहिए, लगातार किसी को नहीं देखना चाहिए, किसी के तरफ उंगली नहीं उठानी चाहिए, और अपने नाक को कईयों के सामने साफ उंगलियों से नहीं करना चाहिए। सिट अप, से प्लीज, लेस नॉइज, shut the door behind you, don't drag your feet, have not you got a hanky, take your hands out of your pockets। ये सारी बातें भी बच्चों को बोली जाती है कि बैठ जाओ, कोई चीज़ लेने के पहले प्लीज़ बोलो, रिक्वेस्ट करो, आवाज़ कम से कम करो, दरवाज़ा बंद करो अगर बाहर जाते हो तो, पैरों को घसीट करके मत चलो, अपने पास रुमाल तुमने रखी है क्या, और अपनी पॉकेट में हाथ डाल करके बात नहीं करनी चाहिए। पुल अप, पुल योर सॉक्स अप, स्टैंड अप स्ट्रेट, से थैंक यू, डोंट इंटरप्ट, no one thinks you are funny, take your elbows off the table, can't you make your own mind up about anything। तो बड़े बच्चों को ये भी बोलते हैं कि अपने मोजे जो आप पहनते हो उसे ऊपर ठीक से चढ़ाओ। स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े रहो, झुक के मत खड़े रहो। कोई आपकी मदद करे या कोई आपको कोई वस्तु दे तो आप थैंक यू बोलो। दो व्यक्ति बात कर रहे हो, तीन व्यक्ति, चार व्यक्ति बात कर रहे हो तो बीच में बिना उनकी बात खत्म हुए अपनी बात मत बोलो, यानी बीच में किसी को मत टोको। और अगर क्लास में बैठते हो तो अपने एल्बोस यानी जो हाथों की कोहनियां हैं, हाथों का मिड पोर्शन है, उसे टेबल के ऊपर रख करके मत बैठो, ये अच्छा नहीं लगता। आप हाथों को टेबल के ऊपर रख के बैठ सकते हो लेकिन एल्बोस के सहारे मत रखो। और किसी को नहीं लगता कि आप बहुत मजाकिया हो। आप अगर कुछ इरिटेटिंग काम करते हो या ऐसे काम करते हो जो नोटिस किए जा सकते हैं तो आप बहुत स्मार्ट नहीं लगोगे। फनी मीन्स स्मार्ट नहीं लगोगे। कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, क्या आप हर चीज़ के बारे में खुद से नहीं सोच सकते? आप खुद से कुछ भी नहीं सोच सकते, इसका अर्थ ये है कि बड़े ये कहना चाहते हैं हमें कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे कि क्या आप खुद से डिसाइड नहीं कर सकते आपको क्या करना है? हम बड़े ही आपको हर बार क्यों बताएं कि आपको क्या करना है? तो स्टूडेंट्स, ये पोएम है जिसके द्वारा हमें ये बताने की कोशिश की गई है पोएट माइकल रोजन के द्वारा कि बड़े अक्सर बच्चों को बात बात पर टोकते हैं, ये मत करो, ये करो, वो मत करो, ये करो। एक सीमा तक ये बातें बच्चों को अच्छी लगती है, बच्चे सीखते हैं इससे। लेकिन यही बातें अगर रोज 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 बोली जाए, हाँ ऑब्वियसली अगर कोई बच्चा समझ ही नहीं रहा है, अगर कोई बच्चा उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर रहा है तो उसे बोलने के लिए पेरेंट्स बाध्य हैं, एल्डर्स बाध्य हैं। लेकिन कई बच्चे और मेरे ख्याल से ज़्यादातर बच्चे अच्छी चीज़ों को समझते भी हैं और अप्लाई करने की कोशिश भी करते हैं।
अगर वो अप्लाई कर लेते हैं, फिर भी अगर बड़े अपनी मेंटेलिटी ऐसी बना लें कि सामने वाले को मुझे बार बार बस समझाना ही है, सामने वाले बच्चे को मुझे बार बार समझाना ही है, थोड़ी सी भी कोई चूक करे तो उसको समझाया जाए बार बार, ये जो ओवर स्ट्रिक्टनेस कई बार एल्डर्स दिखाते हैं, ये अकॉर्डिंग टू द पोएट ये गलत है। और साथ साथ पोएट जो है पेरेंट्स का भी साइड ले रहे हैं, पेरेंट्स की भी का भी साथ दे रहे हैं। पोएट एक तरफ तो ये बोलना चाह रहे हैं कि पेरेंट्स बच्चों को अक्सर इरिटेट करते हैं, और एट द एंड ऑफ द पोएम पोएट ये भी बोलना चाह रहे हैं कि पेरेंट्स ये बच्चों को कहना चाहते हैं कि बच्चे अपना काम खुद क्यों नहीं करते और अपने से खुद से डिसीजन क्यों नहीं ले पाते। तो पोएट एक्चुअली बच्चे और पेरेंट्स दोनों की तरफ से होकर के समझा रहे हैं। सो दिस इज़ अ फनी पोएम एक्चुअली विच एक्चुअली सेज अबाउट द पॉइंट ऑफ व्यू of the parents as well as the point of view of the children, दोनों की ही पॉइंट ऑफ व्यू की बात इस पोएम में की गई है। तो एज ए समरी हम इस पोएम के बारे में ये समझ सकते हैं, इस पोएम के द्वारा ये समझ सकते हैं कि वी शुड नॉट इरिटेट आवर पेरेंट्स, वी शुड नॉट इरिटेट आवर एल्डर्स, whatever they says for our good. We should understand it as soon as possible and we should not repeat the same mistakes again and again. Also, it is the duty of the parents to not irritate the child too. बच्चों को भी पेरेंट्स को इरिटेट नहीं करना चाहिए और साथ साथ पेरेंट्स को भी बच्चों को परेशान नहीं करना चाहिए। दोनों बात है, दोनों हाथ से ताली बजती है। बच्चों एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है, तो दोनों हाथ से ताली बजती है। जिम्मेदारियाँ माँ बाप की भी है, बड़ों की भी है, एल्डर्स की भी है, और जिम्मेदारियां बच्चों की भी है। मेरे ख्याल से दोनों ही अगर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाते हैं तो फिर कुछ ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत बचती नहीं है। कुछ एक बार अगर हम प्यार से समझा दें तो बच्चे समझ जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द पोएम ऑल अबाउट। और अब जो है इसके जो एक्सरसाइजेस हैं, एक्सरसाइजेस वी विल डील इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो आज मैंने वीडियो जो बनाया है उसमें लास्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जो 4 हैं वो आपसे शेयर किए हैं। ऑब्वियसली आपको यू हैव टू राइट द वर्ड मीनिंग्स ऑफ द चैप्टर 4 इन योर नोटबुक, देन यू हैव टू राइट द फोर क्वेश्चन आंसर्स। आई हैव गिवन यू 2 होमवर्क्स ऑल्सो फ्रॉम द लास्ट चैप्टर विच यू हैव टू डू इन योर नोटबुक। राइटिंग पोर्शन जो है 1 नंबर और 3 नंबर, ये मैंने आपको होमवर्क दिया है, ये आपको अपनी नोटबुक में करना है खुद से। And we have just read about the poem Chivi. In our next video, in our next class, we will deal with the exercises of this particular poem Chivi. और तब तक आप इस पोएम के बारे में थोड़ा सा और समझो, उसको दोबारा पढ़ो, और I hope that you have enjoyed the video. I hope that you are staying safe at your home in this COVID-19 pandemic situation. You are not going outside your home until and unless it is very necessary. Okay, so students, जो videos मैं share कर रहा हूँ obviously they are being uploaded in your school's app, and some of the teachers also try to post this particular videos in the WhatsApp group which we have created. Okay, though not all the teachers are doing so, because they are not doing so because actually these videos are being uploaded in the app. And please don't forget to submit your notebooks every Wednesday and Saturday from 9 to 12 p.m. In the next day you have to come in the school and you have to collect your notebooks. ऐसा मत सोचना कि up to date करके ही मुझे देना है। I can understand that all the students speed is not same. अगर किसी बच्चे का चैप्टर 2 तक हुआ है तो वो चैप्टर 2 तक ही चेक करवाए पहले, किसी बच्चे का चैप्टर 1 हुआ है तो चैप्टर 1 तक ही चेक करवाए, किसी का चैप्टर 5 तक कंप्लीट हो गया तो ऑब्वियसली जो अप टू डेट चल रहा है, जो बच्चा फास्ट है तो अप टू डेट चेक करें। तो एटलीस्ट एक चैप्टर आप कंप्लीट करके
वेडनेसडे और सैटरडे को नोटबुक सबमिट कर दो और चेक करवा लो। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट वीक में एक बार तो आपको नोटबुक सबमिट करवानी ही चाहिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। आज का वीडियो काफ़ी सिंपल था और थोड़ा सा शॉर्ट भी था। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। जैसे तैसे जैसे तैसे